Hello everyone, good morning. This is Mona Yadav. So today we are going to start of class 9th chapter number 2nd, that is people as a resource from your economics book. Okay, so first of all we try to understand the topic that is the main title of our chapter, which is people as a resource. Okay, then students, now you will see two words. First is people and second is resource. Then what do you mean by people and what do you mean by resource? So we are actually talking about the population of as a whole, means complete population, overall population की हम यहाँ बात कर रहे हैं people के बारे में. means हम यहाँ देखेंगे कि पीपल हम किन लोगों को कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन तो बहुत सारी है, तो हम ओवरऑल पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड रिसोर्स मीन्स एनीथिंग विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए बेनिफिट, मीन्स वो सारी चीजें जो हमें बेनिफिट देती हैं. ओके, लाइक दैट नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक दैट अदर रिसोर्सेज. देन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ पीपल बिकम एज ए रिसोर्स. मीन्स क्या मनुष्य भी एक रिसोर्स है, क्या मनुष्य भी एक रिसोर्स बन सकता है, या वो हमारे कंट्रीज इकोनॉमी में किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन, किस तरह से अपना रोल प्ले करता है. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ आवर चैप्टर? मीन्स हाउ टू पॉपुलेशन बिकम एन एसेट नॉट लायबिलिटी. देन वी विल रीड नाउ टू वर्ड्स, एसेट एंड लायबिलिटी. ओके, देन पीपल और रिसोर्स के बारे में अभी हमने पढ़ा. अब हम एसेट एंड liability. Okay students, what is asset and what is liability? Then asset means you can say valuable things beneficial for the country's economy. Okay, asset का मीनिंग हम क्या ले रहे हैं कि सभी वो valuable things जो beneficial है country's economy के लिए. ओके, तो क्या people जो है या human beings है, क्या वो assets हैं? Then yes, sure, peoples are also an asset for our country's economy, our country's development. Okay, liability means like that burden. Okay, liability means you can say burden or any obstacle for the country's development. means किसी तरह की अगर रुकावट, कोई obstacle, कोई बाधा है, तो वो क्या है? liability. और asset means उस चीज के लिए एक valuable things के रूप में proper वर्क करना. Then you can say that human being is also a resource. We can say human being is also a resource because that is an asset for our country's economy, our country's development. Okay, then people क्या है, resource क्या है, इनके different meanings जो हैं आप already पढ़ भी चुके हो अपने previous chapters में. अभी भी हमने introduction में discuss कर लिया है. asset and liability में क्या difference है? ओके, दोबारा से एक बार इसको देख लो आप. एसेट मीन्स ऑल वैल्यूएबल थिंग्स बेनिफिशियल फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी, एंड लायबिलिटी मीन्स एनी टाइप ऑफ बर्डन, मीन्स किसी तरह का, यू कैन से बर्डन और ऑब्स्टेकल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, किसी तरह का बर्डन. ठीक है, देन वेल सम पीपल विल से दे आर एसेट, सम दे आर लायबिलिटी. इट कैन बी बोथ. ठीक है, क्योंकि हम सभी को नहीं कह सकते कि कंप्लीट पॉपुलेशन जो है कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, कंट्रीज इकोनॉमी को एक तरह से उसको बढ़ाने के लिए वो एसेट है. देन सो वी विल एनालाइज दैट नाउ. मीन्स our chapter people as resource is an effort to explain, इसमें मेन मोटिव है explanation का. then population as an asset for the economy rather than a liability. अब यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन आता है कि population जो है ह्यूमन कैपिटल या एक एसेट के रूप में कैसे बन सकता है. how do population becomes an human capital, an asset? then population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. Okay, see, so we will analyze that. You all know about different type of resources. Okay, like other resources, population also is a resource, a human resource. When we talk about the natural resources, we have renewable resources, non-renewable resources, other resources. Okay, then when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. Okay students, तो
हम पीपल एज रिसोर्स का मीनिंग किससे ले रहे हैं? इट ए वे ऑफ रेफरिंग टू ए कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। ओके, मीन्स मनुष्य एक रिसोर्स के रूप में, एक संसाधन के रूप में कैसे है कि जो हमारी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन है तो वो अपनी प्रोडक्टिव स्किल से, प्रोडक्टिव एबिलिटी से कंट्री में किसी भी तरह का डेवलपमेंट, मीन्स अपने आप की वैल्यू, अपनी वैल्यू जो है वो उसमें ऐड कर रही है। ठीक है, मीन्स सभी चीजें आप देखते हो, अदर रिसोर्सेज जो है तो उन सभी को एक बेटर यूज कौन कर सकता है? ह्यूमन बीइंग। ओके, देन पीपल एज ए रिसोर्स, it's the definition of people as a resource. And what is human capital formation? Then when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy. Okay, human resource क्या है? further developed by becoming more educated. हम ह्यूमन बींग्स को मीन्स ज्यादा एजुकेशन देके, उनको हेल्दी बना के, अगर उस चीज को एक वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में अगर उसका प्रोसेस, उसका रोल जो है प्ले हो रहा है, देन वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, बिकॉज दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो ये एक तरह से फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन की तरह ही है जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन रहा है और वो उसमें ऐड हो रहा है प्रोडक्टिव पावर में, कंट्री की में। देन वी कैन से दैट जब इस एग्जिस्टिंग ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन रिसोर्स को ज्यादा एजुकेशन देके, अच्छी शिक्षा देके और हेल्थ के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा और ज्यादा डेवलप किया जाता है और ज्यादा विकसित किया जाता है, तो हम इसको क्या कहेंगे? वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन की तरह ही देश की जो प्रोडक्टिव पावर है, कंट्री की जो प्रोडक्टिव पावर है उसको इंक्रीज करती है, उसको बढ़ाती है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। ओके, एंड इन द सेम वे डेवलप दिस ह्यूमन रिसोर्स, मीन हम इस ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कैसे करते हैं? बाय प्रोवाइडिंग देम गुड एजुकेशन एंड बाय हेल्थ। Okay, so people as a resource means what it is a way of referring to a country's working people. ठीक है, कंट्री के वर्किंग पीपल को हम एसेट के रूप में मान रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज, कि उनके पास जो प्रोडक्टिव स्किल्स है जिससे कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंप्लीट कंट्री को एक तरह से मीन्स बेनिफिट देता है, बेनिफिशियल होता है। जो मनुष्य की एबिलिटी है, उसकी जो स्किल्स हैं, वो किसी न किसी तरह से कंट्री में को डेवलपमेंट करने में, कंट्री में डेवलपमेंट होने में अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करते हैं। सो जस्ट इसको बहुत अच्छे से आप समझने के लिए जस्ट गैस आंसर टू अनदर क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन इज ह्यूमन रिसोर्स इज सुपीरियर और इंफीरियर, कि ह्यूमन रिसोर्स सुपीरियर है या इंफीरियर है। ओके, इफ वी डू कंपेरिजन विद द अदर रिसोर्सेज, ठीक है, हम अदर रिसोर्सेज से ह्यूमन रिसोर्स को कंपेयर करते हैं, मीन्स मैंने अभी आपको बताया जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है या अदर जितने भी रिसोर्सेज है, सभी से अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को कंपेयर करते हैं, वी डू द कंपेरिजन विद द अदर रिसोर्सेज, देन जस्ट योर आंसर विल बी ऑफ कोर्स दे आर सुपीरियर, बिकॉज मीन्स ह्यूमन रिसोर्स जो है ऑफ कोर्स आप उसको कहेंगे कि वो सुपीरियर है, देन दे आर सुपीरियर, बट वाई, लेकिन वो सुपीरियर क्यों है बाकी अदर रिसोर्सेज से? बिकॉज यू ऑल नो दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन मेक यूज ऑफ द अदर रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल। ठीक है, मीन्स देखो ह्यूमन बीइंग्स ही जब नहीं होंगे तो अदर जो रिसोर्सेज है उनको यूज कौन करेगा? आज हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, अदर डेवलपमेंट जो हो रहे हैं कंट्री में, या जो भी चीजें, कोई भी चीज, नई चीज डेवलप हो रही है, तो उसको कर कौन रहा है? ह्यूमन बीइंग्स ओनली। तो अदर रिसोर्सेज का होना बहुत अच्छी बात है कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन सारे रिसोर्सेज वेस्ट हैं अगर ह्यूमन बीइंग ही नहीं होंगे, या उनके पास उनकी उस चीज को डेवलप करने की स्किल, एबिलिटी ही नहीं होगी। ओके, देन for example, we have a lot of land resource, okay, then we have renewable resource, we have non-renewable resources, and to make the better means best use of all the resources that are available, that are actually done by human beings, means जितने भी resources हैं उनको beneficial बनाने में या उनको better, उनका best use करने में किसका रोल है? human beings का। okay,
तो वो किसके द्वारा डन किए जाते हैं, किसके द्वारा होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा. देन सो वी कैन से दैट ह्यूमन बीइंग इज ए सुपीरियर रिसोर्स बिकॉज दे एनालाइज, दे मेक बेटर यूज ऑफ ऑल द अदर रिसोर्सेज अवेलेबल. जितने भी हमारे पास, हम ये नहीं कह सकते कि जैसे नेचुरल रिसोर्स है, मीन्स लैंड रिसोर्स है तो नेचुरल है, लेकिन वो हम बना नहीं सकते, लेकिन हम उसको प्रॉपर यूज कर सकते हैं, हम उसको अच्छे से बेटर यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम कंट्री में डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम एसेट बन सकते हैं कंट्री के लिए. तो ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं होंगे तो बाकी रिसोर्सेज का तो कोई बेनिफिट ही नहीं होगा. तो बाकी सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर बेस्ट यूज करने का जो तरीका है दैट कैन बी डन बाय ह्यूमन बीइंग्स. तो उस वे को, उस तरीके को किसके द्वारा किया जाएगा, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा. दैट कैन बी डन बाय ह्यूमन बीइंग्स. सो वी कैन से दैट ह्यूमन बीइंग इज ए सुपीरियर resource. Okay, so now here comes another question. अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ बनता है कि हाउ टू टर्न लार्ज पॉपुलेशन फ्रॉम लायबिलिटी टू एसेट. ओके, तो हमने लायबिलिटी के बारे में बात की. लायबिलिटी मीन्स बर्डन. ओके, लेकिन हम कहें कि भाई पॉपुलेशन अगर में उसमें कोई लायबिलिटी पर्सन्स भी हैं, मीन्स जो कुछ भी अर्निंग नहीं कर रहे हैं या देश की जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमी है, उसमें अपना कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ सोचेंगे कि मैम पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा रिसोर्स भी यूज होगा उसको एसेट बनाने के लिए. मीन्स हम कंप्लीट कंट्री की पॉपुलेशन को एसेट तो नहीं बना सकते. सो कम्स द पॉइंट कि जो इतने ज्यादा लोग हैं वो एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए बर्डन भी हो सकते हैं. तो एक लार्ज पॉपुलेशन, इफ दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट हेल्दी, ओके, तो एंड दे आर नॉट स्किल्ड, तो वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक ऑब्स्टेकल होगा कि नहीं होगा. ठीक है, मींस अगर हम कंट्री की पॉपुलेशन को एजुकेशन प्रोवाइड ना करें, उनको हेल्दी ना बनाए, मींस हेल्थ फैसिलिटीज भी उनको प्रोवाइड ना करें, उनको कोई किसी तरह की स्किल्स, किसी तरह की कोई ट्रेनिंग भी प्रोवाइड ना करें, तो ऑब्वियसली वो जो कंट्री के लिए है, डेवलपमेंट के लिए एक ऑब्स्टेकल होगा, एक बाधा होगी. ठीक है, सो वी कैन टर्न दैम इनटू एसेट्स. तो हम कंट्री की पॉपुलेशन को हमें करना होगा किस में टर्न, एसेट में टर्न्स. ओके, हम उनको एक वैल्यूएबल थिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डूइंग सर्टेन एक्शंस. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, this is the introductory lecture of people as a resource. So tomorrow we will discuss about our main question, how to turn our large population into the assets. Okay, thank you.